Assalamu alaikum students. How are you? Student, this is our first lecture of class 5 and in this lecture we are going to read our new lesson collecting things. Before moving towards our lecture, I have a message for you that you need to stay home in order to stay safe because your safety and security and health is at our priority. You need to wash your hands on regular basis and you need to wear face mask whenever you go out. You need not to shake hand and social distancing is very important. So that was the message related to COVID-19. Now coming back to our lecture, students, take out your English book, page number 40. Collecting things. Collecting things means चीज़ें जमा करना. Students, this story is about a hobby. In this lesson, you will read that what kind of things do people collect, or how does a person start a collection, and many different ways of keeping a collection. Students, if you have a collection of anything, अगर आपकी कोई हॉबी है, कोई चीज़ आप कलेक्ट करते हैं, so you can write on your notebooks about it. So let's start from the words to know. The first word we have archaeology. Archaeology means study of ancient civilization or asare kadima. The second word is botanist. Botanist means ilme nabatat, scientific study in plants. Cabinet, an upright piece of furniture consisting of drawers, shelves or compartments for storing or displaying objects. Preserving, keeping something protected or storing carefully. In first paragraph, students, author asking a question, have you ever thought about making a collection of something? क्या आपने अभी तक किसी चीज़ों को इकट्ठा करने के बारे में सोचा है? एक्चुअली चीज़ों को इकट्ठा करना बहुत ही प्लेजेंट है, खुशगवार है फॉर द मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के बच्चों के लिए. और दुनिया जो है बड़ी पड़ी है मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग थिंग से, दिलचस्प चीज़ों से, जो कि अक्सर व बेशतर बच्चों में भी, बच्चों को भी अच्छी लगती हैं, इंटरेस्टेड होती हैं, और एडल्ट्स को के लिए भी इंटरेस्टेड होती हैं चीज़ों को कलेक्ट करना. इन द सेकेंड पैराग्राफ is asking a question again, what kind of things do people collect? किस किस्म की चीज़ें लोग कलेक्ट करते हैं? And the answer to this, anything and everything. वो कोई भी चीज़ कलेक्ट कर सकते हैं और हर चीज़ कलेक्ट कर सकते हैं. उसके लिए ख़ास पर्टिकुलर रूल नहीं है कि वो यही चीज़ें कलेक्ट करेंगे. They can collect stamps, shells, butterflies, hats, feathers, leaves, stones, matchboxes, even covers, antiques, नायाब चीज़ें, plates, costumes, cars, and 1,001 other thing collected by people in every corner of the world. दुनिया के हर कोने में लोग जो हैं anything collect कर सकते हैं और everything collect कर सकते हैं. There is no hard and fast rule. In the third paragraph, some people begin a collection as a hobby. Obviously collection को start करते हैं as a hobby, एक मशगले के तौर पर इस्तेमाल start करते हैं, and it is an enjoyable way, और बहुत अच्छा उनके लिए, लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है, या वो अपनी बारिश वाली दोपहर को स्पेंड करने के लिए या अपने फ्री टाइम को स्पेंड करने के लिए. क्वाइट ऑफन व्हाट स्टार्ट्स ऑफ एज अ हॉबी, अक्सर बेशतर ऐसा भी होता है कि जब आप इसे एक शौक़ के तौर पे या शुरू करते हैं तो समटाइम ये इन फ्यूचर आपके लिए एक सीरियस मुताला या आपका इवन प्रोफेशन भी बन सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर कोई स्टैम्प्स कलेक्ट करता है तो हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल, कि वो बाद में व्हेन ही एडल्ट तो वो ही वांट टू वर्क विद स्टैम्प्स, के वो स्टैम्प्स के साथ काम करे. अगर कोई ओल्ड कॉइन्स कलेक्ट करता है तो हो सकता है कि लेटर ऑन वो हिस्ट्री में उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए या आर्कियोलॉजी में उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए. सिमिलरली कोई कलेक्टर ऑफ फ्लावर्स है, हो सकता है वो बाद में बॉटनिस्ट बन जाए. Students, in the next paragraph, he is also again asking the question, how does a person start a collection? के एक जो है वो अपनी collection को start कैसे करता है? ये बहुत easy question नहीं है जिस तरह का ये लग रहा है. सबसे पहले you have to decide what you are going to collect, कि आपने collect क्या करना है. Obviously किसी चीज़ में आपका interest होगा, then you can collect the things. तो उसके लिए एक तो आपका चीज़ का interest होना very necessary. Secondly, इट विल बी अवेलेबल. अगर कोई चीज़ आपके पास अवेलेबिलिटी होगी किसी चीज़ की, देन यू कैन कलेक्ट द थिंग ना. अगर कोई चीज़ आपके पास है
तो फिर आप कलेक्ट कर सकते हैं। एक आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, सेकेंडली आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उस चीज़ की। फॉर एग्जांपल वी हैव टू एग्जांपल्स लाइक कलेक्टिंग सी शेल्स। अगर सी आपसे बहुत दूर है, समंदर आपसे बहुत दूर है, तो हाउ कैन यू कलेक्ट द थिंग्स। ठीक है। एक और एग्जांपल है वी हैव कलेक्टिंग फ्लावर्स की। इफ़ यू सेल्डम विजिट अ गार्डन और कंट्री साइड, तो किस तरह से आप कलेक्ट कर सकते हैं, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कलेक्ट द फ्लावर्स। नेक्स्ट पैराग्राफ, स्टूडेंट स्टैम्प कलेक्टिंग इज़ द मोस्ट पॉपुलर कलेक्शन एज अ हॉबी बिकॉज स्टैम्प्स वर ईजिली obtained, क्योंकि स्टैम्प्स जो हैं स्टैम्प्स वर इजीली obtained क्योंकि इजीली हासिल की जा सकती हैं, क्योंकि मोस्ट पीपल हैड फ्रेंड्स इन डिस्टेंट प्लेसेस के दूर जगहों पर उनके फ्रेंड्स रहते हैं जिनको वो लेटर लिखते हैं। और अक्सर व बेशतर बच्चे जो हैं इन चीज़ों में इंटरेस्टिंग लेते हैं, इन राइटिंग लिखने में इंटरेस्ट लेते हैं। टू अ पेन फ्रेंड, अ पेन फ्रेंड कौन होता है, अ पर्सन whom they had never met, जिसको आप कभी नहीं मिले हों और जो फॉरेन कंट्री में रहता हो। जब आप यू आर राइटिंग अ लेटर टू अ पेन फ्रेंड, तो आपके पास ऑब्वियसली एक एनवलप होता है। व्हेन एन एनवलप विद अ कलरफुल स्टैम्प अराइव्स, जब वो आपके पास पहुंचता है, कलरफुल स्टैम्प लगी होती है, ऑब्वियसली हर कंट्री की एक स्टैम्प होती है, वो लगी होती है। सो यू माइट से व्हाट अ लवली स्टैम्प, जब उसको देखते हैं तो अगर स्टैम्प कलरफुल होती है, बहुत अच्छी होती है, तो यू कैन से व्हाट अ लवली स्टैम्प। इट्स अ पिटी टू थ्रू, तो आप उसे इजीली फेंक नहीं सकते, आपके लिए आसान नहीं होता उसको फेंकना। तो दैट स्टैम्प देन बिकम्स, हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि वो स्टैम्प जो है आपकी फर्स्ट कलेक्शन बन जाए। इट इज़ द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग हॉबी। नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर आर मैनी वेज ऑफ कीपिंग अ कलेक्शन। बहुत ज़्यादा तरीके हैं, बहुत से डिफरेंट वेज़ हैं उन्होंने बताए हुए हैं कि आप अपनी कलेक्शन को कैसे सेव रख सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। स्टैम्प्स में बी पुट इनटू एन एल्बम, एल्बम में आप रख सकते हैं। स्टोन्स और बॉटल्स विल हैव टू बी केप्ट इन कैबिनेट्स और इन बॉक्सेस। जो आपके स्टोन्स हैं या बॉटल्स हैं एंटीक, वो उनको आप अपने कैबिनेट्स में रख सकते हैं और बॉटल्स में रख सकते हैं। एंड फ्लावर्स कैन बी प्रेस्ड, उनको आप फ्लावर्स को जो है प्रेस कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं स्क्रैप बुक में। नेक्स्ट पेज, students, in this paragraph author explains that how can you preserve the flower or leaf in your book, in your album, and how can you make the record book, and what will you write in your record book. Okay, preserving flowers and leaves is quite easy when you have picked the same sample you want. Place it on a sheet of paper. आप उसको सबसे पहले अपने न्यूज़पेपर की एक शीट पे रखें और उस न्यूज़पेपर को ऑन अ शीट ऑफ हार्डबोर्ड की एक शीट पे रख दें। और फ्लावर के ऊपर जो है एक और पीस ऑफ न्यूज़पेपर वो यू हैव टू पुट, और जो कि आपने हार्डबोर्ड के ऊपर भी आपने एक और पीस रख देना है। पुट अ फ्यू हैवी बुक्स ऑन द टॉप, आप उसके ऊपर जो है हैवी बुक्स जो है रख दें। स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ डिफरेंट बिटवीन पुट एंड प्लेस। पुट मीन्स ज़रा आप ज़ोर से जैसे कोई चीज़ रखते हैं, और प्लेस मीन्स बहुत आराम से रखना। एंड लीव इट फॉर अ फ्यू डेज, और कुछ दिन के लिए उसे छोड़ दें। इफ़ द फ्लावर और लीफ आर जूसी, अगर वो जूसी होंगे तो अपना जूस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा उस न्यूज़पेपर में। देन द द फ्लावर विल बी रेडी टू पुट इन टू योर एल्बम। वो इस तरह प्रिपेयर हो जाता है आपके एल्बम में रखने के लिए विद इन 2 weeks। ओके, व्हेन द फ्लावर हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ द प्रेस, जब आप उसे निकालते हैं, प्लेस इट ऑन सम क्लीन पेपर, और इसे आप किसी साफ पेपर पे रखते हैं। एंड फिक्स इट विद टाइनी ड्रॉप्स ऑफ ग्लू, फिर आप उसे ग्लू के साथ फिक्स करते हैं या गम के साथ, किसी गम पेपर के साथ करते हैं। एंड पेस्ट द होल, और आप पेज को एल्बम में पेस्ट कर देते हैं। In addition to putting samples of flowers in your record book, you will have to make notes about if you want to write about the flower, so you can record the name, when and where it was found, its size, the color and shape, and any other detail you want to write. कोई भी डिटेल आप फ्लावर के बारे में लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट इन योर नोटबुक, in your record book. And if you're good at drawing, so you can make drawings of the flowers and the
प्लांट्स डेट दे कम फ्रॉम, के वो कौन से प्लांट से लिया गया है. Here is a page from a flower record books is students as you can see on your notebooks कि आपको दिखाया गया है कि किस तरह एक रैकेट बुक जो फ्लावर की है उन्होंने बनाई है, और उसमें उन्होंने डेट मेंशन की है, प्लेस मेंशन किया है, साइज़ उसका मेंशन किया है, कलर और उसके बारे में लिखा है. Students, in the next lecture inshallah we will discuss about the words meaning, word sentences, short and long question answers. Thank you.